السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ آؤٹر رنگ روڈ ٹول کنٹریکٹ معاملے کی تحقیقات کے لیے سٹ قائم کی جائے گی۔ ہریش راؤ کے مطالبے پر ایوان اسمبلی میں ریونت ریڈی کا اعلان۔ فارمولا ای ریس معاملے میں اے سی بی نے کے ٹی آر کو بنایا ملزم نمبر 1۔ اسمبلی میں مباحث کے لیے حکومت سے کیا مطالبہ۔ ریاستی حکومت مرکزی حکومت کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ اعداد و شمار کے کھیل میں ریاست کو ہوگا نقصان۔ آر بی آئی کی تازہ رپورٹ کا اکبر الدین اویسی نے دیا حوالہ۔ اور بیل بجانے کے بعد خاتون کے گلے سے 4 تولے کی طلائی چین چھین کر سارق فرار۔ نارسنگی پولیس اسٹیشن حدود کے حیدر شاہ کوٹ میں سنسنی خیز واردات۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں۔ کیو میکس دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل۔ 5th 6th 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹولی چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن کیو میکس کوہینور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، ایمسن ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کے آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون مابن، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر۔ سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز معاون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن beside رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر، بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ۔ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ، ہماری پہچان، جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اور اب پیش میں خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے کہا کہ اپوزیشن کی درخواست کے مطابق ٹول کانٹریکٹ پر ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم سٹ قائم کریں گے۔ ایوان اسمبلی میں ہریش راؤ کی تقریر کے دوران وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہریش راؤ کی خواہش کے مطابق ہم تمام ارکان کی منظوری کے ساتھ مکمل تحقیقات کا حکم دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس پر کابینہ میں بات کریں گے اور طریقہ کار کو وضع کریں گے، جس پر ہریش راؤ نے کہا کہ ہم تحقیقات کے لیے تیار ہیں۔ تلنگانہ کے سابق وزیر اور BRS پارٹی کے کارگزار صدر KT راما راؤ کے خلاف فارمولا ای ریس معاملے کے سلسلے میں ACB نے FIR درج کی ہے۔ فارمولا ای ریس پروجیکٹ میں مبینہ بے قاعدگیوں کے تحت کیس درج کیا گیا ہے۔
KTR को मुलजिम नंबर 1 बनाया गया है, जबकि बलदी नज़्म व नस्क के साबिक स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार को मुलजिम नंबर 2, HMDA के चीफ इंजीनियर DNL रेड्डी को मुलजिम नंबर 3 बनाया गया है। FIR में ये इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि HMDA के 55 करोड़ रुपए के फंड्स फार्मूला E ऑपरेशंस को मुंतकिल किए गए थे और इसके लिए दरकार इजाज़त हासिल नहीं की गई थी। यह भी इंकशाफ किया गया है कि KTR की हिदायत पर ये फंड्स मुंतकिल किए गए थे। कांग्रेस हुकूमत के आने के बाद दूसरी फार्मूला E रेस को मनसूख कर दिया गया था। वाज़ेह है कि रियासत के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने KTR और अरविंद कुमार के खिलाफ कार्रवाई को मंजूरी दी थी। KTR ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। दूसरी तरफ ये इत्तलात मिली हैं कि तेलंगाना भवन के पास जुमेरात की दोपहर से पुलिस की तैनाती में इजाफा देखा गया है। BRS पार्टी के कारगुजार सदर और रुकन असम्बली KTR ने कहा कि ऐवान असम्बली में कार रेस पर मुबाहिस किए जाएं। ऐवान असम्बली में KTR ने कहा कि उनके अरकान असम्बली ने उनको बताया कि उनके खिलाफ कोई केस दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि असम्बली इजलास जारी है, इसलिए स्पीकर से मुतालबा करता हूं कि अगर हुकूमत संजीदा है और हक़ाइक़ को अवाम के सामने लाना चाहती है तो इस पर बहस करें। E-रेस के तमाम मामलात पर वो मुबाहिस के लिए तैयार हैं। ऐवान असम्बली में एजेंडे के मुताबिक कार्रवाई न चलाने पर अपोजिशन पार्टियों की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। एजेंडे के मुताबिक ऐवान में 3 बिल्स पर मुबाहिस होने थे, लेकिन रियासती कर्ज और खसारे पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी कुमारका ने तकरीर शुरू कर दी, जिस पर कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने असम्बली चलाने के तरीक़ेकार पर नाराज़गी का इजहार किया है। ऐवान असम्बली में अकबर ओवैसी ने कहा कि अगर हुकूमत असम्बली चलाने से कासिर है तो ये समझा जा सकता है कि वह हुकूमत कैसे चलाएगी। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि हुकूमत को बताना चाहिए कि इजलास आखिर कितने दिन चलाया जाएगा। पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक तमाम फ्लोर लीडर्स को एतमाद में लेकर असम्बली की कार्रवाई चलाई जानी चाहिए। Sir, I came and I asked and I was told that we will be taking up the bills. Sir, I'm sitting there preparing for the bills. And suddenly what we see is that you have taken up the short discussion, sir. Sir, it is so unfair, sir. You have to come for the rescue, sir. I'm not questioning your authority, sir. You can take anything, sir. But, sir, the floor leader should be taken into confidence. And sir, I'm not against the discussion, sir. Sir, 3 times, sir, we have already had the discussion. 3 times the question has come. This is the 8th time that the House is discussing on the finances, sir, loans. And after 9, they say N numbers, sir. N numbers we are discussing on finances, loans, liabilities, interest. Sir, 7th and 8th time. Sir, I'm not against this, sir, but please take us into confidence, sir. We have to prepare, sir. And I was preparing for the bills and suddenly I see you. And sir, I want to also know, after this short discussion, are we going to continue with the second short discussion? So at least I'll go and prepare for that, sir. If we are doing that and not going for the bills, we need a clarification, sir, so that we can at least prepare ourselves, sir. I request you to please come for the rescue, sir. And once again, I'm saying I'm not questioning your authority at all, sir. You have all the rights to take, sir. But it is a parliamentary practice where all the floor leaders are being taken into, confidence. कि भाई CM साहब को जाना है, मिनिस्टर साहब को कहीं जाना है या कुछ मीटिंग है, जरा पहले ये ले लेंगे. तो we can go and prepare, sir. At least इतना तो coordination करो, sir. Sir, in Parliament, whenever the Parliament is announced, they announce the Parliament will start on this day, it will end on this day. Still we do not know when are we ending the session. Every time the BSc is conducted, sir, whatever decision has been taken in BSc, it is circulated. Up till now, we don't know. Only one sentence came, speaker will decide. Yes, sir, your authority, you have the authority, you can decide. But the question is, when are we going to decide? If the government is unable to run the house, so I can understand and imagine how they are running the government, sir. BRS के लीडर हरीश राव ने ऐवान की कार्रवाई चलाने से मुतालिक अकबरुद्दीन अवैसी के मौक़िफ़ की हिमायत की। हरीश राव ने बरहमी के आलम में कहा कि उन्होंने सेक्रेटरी से भी पूछा तो उन्होंने भी इस पर कुछ नहीं बताया। Sir, I fully agree with Akbaruddin Owaisi sahab.
అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారి వ్యాఖ్యలతో పూర్తిగా ఏకీభవిస్తున్నాం అధ్యక్ష. ఇన్ఫాక్ట్ అధ్యక్ష, బెల్లు కొట్టడానికి 10 నిమిషాల ముందు కూడా అసెంబ్లీ సెక్రటరీ గారి దగ్గరికి నేను వెళ్ళి ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటారు సెక్రటరీ గారు అంటే తెలియదు సార్, స్పీకర్ గారు డిసైడ్ చేస్తారు. ఈజ్ ఇట్ ద వే? 10 मिनट पहले सेक्रेटरी साहब को मैं भी पूछा, नहीं मालूम बोल रहा सेक्रेटरी साहब, ये क्या चल रहा है? ये असेंबली चलाने का तरीका है क्या? इज इट द वे ऑफ रनिंग द हाउस? स्पीकर साहब, मी रूलिंग हियर. असेंबली उमूर के इंचार्ज वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि ऐवान की कार्रवाई स्पीकर के हुक्म के मुताबिक चलाई जा रही है. उन्होंने कहा कि हरीश राव ने मरात शिकनी नोटिस पर बात करने का मुतालबा किया था. इसको देखते हुए कर्ज और खसारे पर बहस को पहले तरजीह दी गई. उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों के फ्लोर लीडर्स को एतमाद में लेकर ऐवान की कार्रवाई चलाई जा रही है. हरीश राव के एतराज करने पर श्रीधर बाबू ने कहा कि हरीश राव कोई फ्लोर लीडर नहीं है. बाद में स्पीकर ने ऐलान किया कि उनके कहने पर ही इस मौजू पर मुख्तसर मुबाहिस हो रहे हैं. ప్రస్తావన వచ్చింది అధ్యక్ష. హరీష్ రావు గారు ప్రివిలేజ్ మోషన్ ఇచ్చారు, నోటీస్ ఇచ్చారు కదా సార్. వినండి సార్, దాని విషయంలో ఏ విధంగా బయట ప్రజలకు ప్రకదారి పట్టిస్తా ఉన్నారు అంశం ప్రాధాన్యత తీసుకున్నాం అధ్యక్ష. అప్పులు ఎందుకు చేస్తానో దాని పరంగా తీసుకెళ్తానే కార్యక్రమం. ఈరోజు మేము చెప్తా ఉన్నాం, ఈరోజు వారి ప్రస్తావన అది ముఖ్యం కాదు అంటే వేరే సబ్జెక్ట్ తీసుకుందాం. మీ సబ్జెక్ట్ ఇష్యూ లేదంటే వేరే, మీరు మీ దగ్గర సబ్జెక్ట్ లేదు ఏదో ప్రజలకు చెప్పామంటే చెప్పండి సార్, అదనే చెప్పండి. ఇది వద్దన్నా అంటే ఊరుకుంటాము. ఇది ఆ అప్పుల విషయంలో ప్రత్యేకమైన ప్రస్తావన చేస్తాము, ప్రజలకు మేము జవాబుదారీ అని తీసుకుంది. एक मिनट आपका भी बोलता हूँ, आपका भी मैं आपका भी बोलता हूँ साहब. अरे आपका भी बोलता हूँ. अरे सर ऑनरेबल स्पीकर्स कुన్న డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ కానీ మీకు సంబంధించిన అంశం మీరు ఎట్లా చేసిండ్రు, ఏ విధంగా చేసిండ్రు, ఎందుకు చేసిండ్రు, ఇదేం సార్? ఇదేంది? వారు ఎన్నిసార్లు చేయలే? ఒక్కసారి స్పీకర్ గారు కూడా తెలియకుండా మాకు కూడా తెలియకుండా మేము అనేక సందర్భాల్లో కూర్చున్నాం సార్. నేను आपको नहीं बोल रहा हूं भाई, आपको नहीं बोल रहा, मैं आपको बात करता हूं भाई, आप मान लें. नहीं, गलती को मानने नहीं सर. why we should sorry? It's the honorable speaker's direction which has to be followed. Why? No, that is not our job. It's not my job to take you out. Out of consideration and out of respect for the floor leader. He being the floor leader, we are answerable. He being the floor leader, we are answerable. Who is the floor leader there? You are not the floor leader there. Where is the floor leader? Where is the floor leader? How can you say that? Where is the floor leader? We are answerable to the floor leaders. Where is the floor leader? मजलिस के कायद मुक़न्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि रियासती हुकूमत मरकज़ी हुकूमत के नक्श कदम पर चलकर रियासत को कमज़ोर कर रही है. ऐवान असम्बली में रियासत के कर्ज और खसारे से मुताल्लिक़ कोई मुख्तसर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि BRS हुकूमत जो कर रही थी यही काम कांग्रेस हुकूमत कर रही है. उन्होंने कहा कि इस मामले पर 7 या 9 बार मुबाहिस हो चुके हैं, लेकिन कोई किसी को एतमाद में लेने तैयार नहीं है. इसकी असल वजह हुकूमत की तरफ से जारी करदा आदादुशुमार दुरुस्त नहीं है. महकमे फाइनेंस के अहदेदारों ने पिछली हुकूमत में जिन बातों को खुफिया रखा था वही बातें कांग्रेस हुकूमत खुफिया रख रही है, जिसकी वजह से असल हक़ाइक़ सामने नहीं आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि 19 दिसंबर को RBI की जानिब से पेश किए गए आदादुशुमार के मुताबिक हुकूमत अगर अपनी रिपोर्ट में आदादुशुमार पेश करेगी तो मसला वाज़ेह हो जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत अपने आदादुशुमार पर भरोसा करती है तो RBI को एतमाद में लेकर आदादुशुमार तब्दील करे. ऐवान में जो आदादुशुमार पेश किए जा रहे हैं इसमें मुख्तलिफ आदादुशुमार पेश किए जा रहे हैं, लिहाजा RBI की रिपोर्ट के मुताबिक आदादुशुमार पेश करें. अकबर ओवैसी ने कहा कि हुकूमत BRS हुकूमत के नक्श कदम पर चल रही है, DROs नहीं आ रहे हैं. अकबर ओवैसी ने याद दहानी कराई कि IMJ भारत के केस में सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने की जरूरत है. What I really fail to understand, there are two things, sir. First and foremost, the important thing is that, sir,
when we say that the state finances are in very bad condition and loans are increasing, काफी तकालीफ है, मुसीबत है, सब कुछ है, तो sir, I mean, at least I think, are we not wasting public's money debating the same issue again and again, sir? At least we can save that money and, spend on 6 guarantees. At least we can do that, sir. One is this, sir. The opposition parties, by saying that کہ loans اتنے نہیں اتنے ہیں, کارپوریشن کے لونز بھی لے رہے, یہ RBI ایک لون کا فگر دیتا ہے, اس کو گورنمنٹ ایکسپٹ نہیں کرتی ہے, بولتی نہیں غلط ہے. ہم سب بولتے ہیں یہ RBI کی بک میں یہ آیا ہے. So I would say that Honorable Minister Saab had spent so much of his energy, effort, his learnedness and whatever information he has to convince all of us. I request him, sir, whatever energy and time he has spent to convince all the opposition parties, from that 10% take out some time, and why don't you convince RBI, sir? اب پھر اگر بولتے ہیں نہیں بھائی یہ غلط ہے بولے تو پلیز RBI کو کنونس کرو سر, میری آپ سے ریکویسٹ ہے سر. نہیں تو آپ ہم بھی جائیں گے سر RBI کے پاس, جا کے ان کو بولیں گے کہ نہیں بھائی ہمارے فگرز کو مانو, بولیں گے ہمارے جو ہے سو, ہمارے مطلب آپ کے جو ہے. Please try to understand. Please try to understand. Just to corner a government, ex-government I would say, just to corner the BRS government, please do not risk the future of the state, sir. Do not put the future of the state in dark, sir, is my appeal to you, sir. Earlier also I have spoken and I said, sir, we want the investors to come in the state. We want the development to come in state. We want people to come here, sir, because our state is very beautiful. With this picture, you are sending away the investors, pushing away sir. What is happening, sir? The fear of Hydra is so much the real estate has collapsed. But in Telangana's government statement of fiscal policy, only D1, D2, D3 and D6 statements are provided. Genius bureaucrats, no, sir. उनको शिकायत है, ओ ये नहीं बताना, इसको रखेंगे, वही सेम कंटिन्यू कर रहे हैं, इनको भी बता रहे हैं सर ये नहीं बताना, ये छुपाना. अब लीडर बोले आप, मगर देखो आप, मैं बता रहा हूं लीडर को कि देखो ये लोग ये चीज छुपा रहे हैं, इनको भी वैसी कर कर वहां भेज दिए. ऐसा ना हो कि उन पे टोटली आप डिपेंड करेंगे तो फिर आप यहां आ जाएंगे. प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपका दोस्त हूं, इसलिए बोल रहा हूं. मैं आपका दोस्त हूं भाई, इसलिए बोल रहा हूं. मैं चाहता हूं कि आप रहे वहां पे. सर अब ये जो सैलरीज का है ना सर सैलरीज को मैं बुक्स में से निकालना चाह रहा था. सर आई हैड टू गो इन 3 places, सर. 3 places I had to go. Why don't you make it very simple? सर आंध्र प्रदेश का आप निकाल कर देखिए सर, कितना अच्छा रहता है, साफ सीधा रहता है. ये देखिए सर, this is what I'm talking, sir. This is what statement of fiscal policy to be laid on the table of the Telangana State Legislature in July 2024. ये पूरे डिटेल्स क्यों नहीं देते हैं सर? आप देखिए, आप इसमें सिर्फ 2-3 यही दिए. Why sir? पूरा why are we hiding it, sir? They let these people hide it, don't show it, hide it, don't show it, and they're saying the same thing, hide it, don't show it. राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में कांग्रेस ये सारी चीजें देती थी, सारी चीजें. रोशैया साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, सारी चीजें देते थे. लेकिन तेलंगाना बने बाद बीआरएस ने जो किया वो काम वैसी हो रहा है. नहीं मालूम कि वो राजशेखर रेड्डी की कांग्रेस कहां गुम हो गई. आज की इस कांग्रेस में मैं ढूंढ रहा हूं. उम्मीद करता हूं कि वो कांग्रेस जरूर मुझे जल्द नजर आ जाएगी, आपसे जल्द नजर आ जाएगी. बीआरओस भी नहीं आ रहे साहब. पहले बीआरओस आते थे, वो बीआरओस भी पता ही नहीं चल रहा कुछ भी. सब फाइनेंसेस हिडन है. वो इनके दौर में इन्हों जियोस को भी छुपाते थे साहब, इन्हों बीआरओस को भी छुपा रहे. बीआरओस अच्छा वो भी हो गया. चलिए मुबारक, दे आर फॉलोइंग यू, दे आर कंटिन्यूइंग यू. सर नाउ आई मे ऑल्सो पॉइंट आउट
and say that, देखो sir, my concern is one sir, इन्हों जो करे इनको आवाम यहाँ भेज दी, इन्हों जो गलत करे वो सेम गलती अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आवाम फिर इनको भी नहीं बोलेंगी, इनको भी नहीं बोलेंगी, किसी तीसरे को बोलेंगी, तो तीसरा ना आपके लिए अच्छा है, ना इनके लिए अच्छा है, ना मेरे लिए अच्छा है. सही है ना साहब? सर नहीं है ना सवाल? बिल्कुल, दैट्स इट, वेरी गुड सर. तो हमारी कोशिश यही रहती है सर, हमारी कोशिश यही रहती है कि तीसरा ना आए. जी, आई एम श्योर सर कि जरूर जितने प्रोमिसेस करे हैं उसको बराबर फुलफिल करेंगे. ठीक है, वक्त लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा, लेकिन अब 1.5 साल होने आ रहा है, 1.5 साल होने आ रहा है, 1 साल तो हो गया है. बजट आए जब तक 1.5 साल हो जाता है, तो उम्मीद करते हैं कि बजट विल रिफ्लेक्ट एटलीस्ट नॉट फुल promises of 6 guarantees, few promises of 6 guarantees would be addressed sir. ऐवान असम्बली में कर्ज और खसारे से मुताल्लिक ऐवान असम्बली को गुमराह करने पर हरीश राव ने मिराद शिकनी नोटिस जारी की थी. इस पस मंजर में भट्टे विक्रमार्का ने कहा कि हरीश राव झूठ बोल रहे हैं और अवाम को गुमराह कर रहे हैं. बीआरएस हुकूमत ने 7 लाख करोड़ रुपए खर्च के अलावा 48,000 करोड़ के बकाया जात थे जिसको कांग्रेस हुकूमत अदा कर रही है, जिस पर हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने 1 साल में 1,27,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है. इस मामले पर हरीश राव और भट्टे विक्रमार्का का दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए एक दूसरे पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाते रहे. हरीश राव ने कहा कि बीआरएस हुकूमत के कर्ज को लेकर जो आदाद-ओ-शुमार पेश किए गए हैं, अगर वो साबित करेंगे तो वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं, अगर नहीं कर सकते तो वज़ीर फाइनेंस इस्तीफ़ा दें. तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया है कि आइंदा 2 महीने के बाद सफेद राशन कार्ड पर बारीक चावल फराहम किया जाएगा. असेंबली में रियासती वजीर ने बताया कि काबीना में इसका फैसला किया गया है और 2 महीने के बाद इस पर अमल होगा. उन्होंने कहा कि पीडीएस चावल की मुंतकली पर काबू पाने के लिए बारीक चावल फराहम कर रहे हैं. पीडीएस चावल मुंतकली करने वालों के खिलाफ पीडी एक्ट लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि संक्रांति त्यौहार के बाद हर बीपीएल खानदान को सफेद राशन कार्ड दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि राशन डीलर्स को मुनासिब कमीशन फराहम किया जा रहा है. उन्होंने राशन की दुकानों में इजाफे से मुताल्लिक कहा कि जहां भी ज़रूरत होगी वहां पर राशन डीलर्स के लिए दुकानें खोली जाएंगी. उन्होंने कहा जहां मुमकिन हो सके वहां पर राशन डीलर्स को दुकान खोलने दिया जाएगा. कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने नलगुंडा के आपाशी प्रोजेक्ट से मुताल्लिक सवाल किया तो हरीश राव ने मदाखलत करते हुए कहा कि हुकूमत का हर फैसला काबीना का मुश्तरका फैसला होता है, वजीर का सवाल करना मुनासिब नहीं है. हरीश राव की तनकीदों पर कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि आखिर हरीश राव न तो कायदे अपोजिशन हैं और न ही डिप्टी अपोजिशन लीडर हैं, फिर किस हैसियत से वो बार बार खड़े होकर रिमार्क कर रहे हैं. पहले हरीश राव को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए. बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को मकतूब रवाना करते हुए अदानी के साथ तेलंगाना हुकूमत और वजीर आला रेवंत रेड्डी के ताल्लुकात के बारे में वजाहत तलब की है. मीडिया के लिए जारी किए गए अपनी वीडियो पयाम में केटी रामाराव ने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी अदानी को वजीर आजम का सरमायाकार कहते हैं तो दूसरी तरफ तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी स्किल यूनिवर्सिटी के नाम पर अदानी से 100 करोड़ रुपए के सरमाए को कबूल करते हैं. अडानी का तेलंगाना हुकूमत का सुर्खकालीन पर इस्तकबाल करती है. राहुल गांधी से मुखातिब होते हुए केटीआर ने कहा कि 12,400 करोड़ रुपए की बैरूनी सरमायाकारी के लिए तेलंगाना हुकूमत ने याददाश्त मफाहिमत पर दस्तखत किए हैं और इसका ताल्लुक भी अडानी से है. राहुल गांधी को इस सिलसिले में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए. तेलंगाना असेंबली के अहाते में भी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बाबा साहब अम्बेडकर से मुताल्लिक़ मुबैना रिमार्क को लेकर महात्मा गांधी के मुजस्समे के पास धरना दिया गया. कांग्रेस के अरकान मुक़न्नना बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर थामे हुए थे. अमित शाह से इस्तीफ़े का भी मुतालबा करते हुए नारे लगाए गए. इस एहतजाज में सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ और अरकान मुक़न्नना ने शिरकत की. हैदराबाद में हाई कोर्ट वकला की तरफ से अम्बेडकर के खिलाफ वजीर दाखिला अमित शाह के मुबैना रिमार्क को लेकर धरना दिया गया. वकला अपने हाथों में बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर थामे हुए थे. उनका मुतालबा था कि अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए.
अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने एसएससी सालाना इम्तिहानात की तारीख का ऐलान कर दिया। मार्च 2025 के इम्तिहानात का आगाज 21 मार्च से होगा, जो 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। एसएससी के साथ ओएसएससी, ओकेशनल, रेगुलर और नाकाम हुए खानगी तलबा के इम्तिहानात भी होंगे। इम्तिहानात के औकात सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे होंगे। पहला पर्चा 21 मार्च को ज़बान अव्वल का होगा, दूसरे दिन 22 मार्च को ज़बान दुअम, 24 मार्च को ज़बान सुवम अंग्रेज़ी। इसके बाद रियादी, साइंस, सोशल स्टडीज़ के इम्तिहानात होंगे। 3 अप्रैल को ओएसएससी ज़बान पर्चे अव्वल, संस्कृत और अरबी के इम्तिहानात होंगे। इसी दिन ओकेशनल के थ्योरी इम्तिहानात भी होंगे। 4 अप्रैल को ओएसएससी ज़बान पर्चे दुअम के इम्तिहानात मुनक्किद होंगे। इम्तिहानी शेड्यूल के साथ उम्मीदवारों के लिए क़वायद व ज़वाबित जारी किए गए हैं। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने जुमेरात को 42 मुस्तहिक दरख्वास्त गुजारों में मंजूरा चेक्स तकसीम किए। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन की निगरानी में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में नुमाइंदा रुकन बलदिया विजयनगर कॉलोनी डिवीजन डॉक्टर कासिम ने अपने डिवीजन के तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने मासाब टैंक में ज़ेर तामीर 2 फव्वारों के कामों का भी मुआयना किया, जो चमन को खूबसूरत बनाने के लिए लगाए जा रहे हैं। इस मौके पर महकमा बलदिया और आबरसानी के अहदेदारों के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। दर्ज फहरिस्त अक़वाम के माला तबके की तरफ से तेलंगाना असम्बली के पास एहतजाज की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। एहतजाजी माला तबके के अफराद का कहना था कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी एससी कास्ट के मादिगास की एससी ज़ुमराबंदी की हिमायत कर रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। हाइड्रा की तरफ से मणिकुंडा के अलकापुरी कॉलोनी में इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई है। हाइड्रा की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया है कि रिहायशी अपार्टमेंट अनुहार मॉर्निंग रागा में मुबैना इजाज़त न होने के बावजूद भी कमर्शियल शटर्स लगाए गए थे। इन्हदामी कार्रवाई के दौरान हाइड्रा के अहदेदारों और ताजरीन के दरमियान बहस व तकरार देखी गई। ताजरीन का कहना था कि उन्होंने लाखों रुपए का कमर्शियल टैक्स अदा किया है। किस तरह से उनके शटर्स को और तामीरात को मुनहदिम किया जाता है। ताहम पुलिस की मौजूदगी में यह कार्रवाई अंजाम दी गई। मादानापेट पुलिस स्टेशन हदूद में जुमेरात की सुबह के अवलीन सातों में दरवाजे बनाने वाले कारखाने में आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक आग दरवाजे और सोफा तैयार करने वाले यूनिट में अचानक भड़क उठी और देखते ही देखते आग ने पूरे कारखाने को अपनी लपेट में ले लिया। मुकामी अवाम की तल्ला पर मुताल्लिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात भी मुकाम वाक़या पहुँचे। फायर ब्रिगेड के अमले को भी तलब कर लिया गया। तकरीबन 9 से 10 फायर इंजन्स ने आग पर काबू पाने के अमल में हिस्सा लिया। किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। नुमाइंदा कॉरपोरेटर ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और मुतल्लिका रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज को इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया जाएगा और नुकसान की पाबजाई के सिलसिले में नुमाइंदगी की जाएगी। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। संगारेड्डी में पुलिस की जानिब से नारायण रेड्डी कॉलोनी के इलाके जात में तलाशी मुहिम चलाई गई, जिसकी डीएसपी संगारेड्डी सत्यगौड़ ने क़यादत की। तलाशी मुहिम में दीगर पुलिस अहदेदारों के अलावा 100 पुलिस अहलकारों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पुलिस ने मुश्तबा शख्स जो बगैर शनाख्ती कार्ड के रह रहा था, इससे पूछताछ करके उसके कब्जे से 3 मोटर कारें और 42 मोटरसाइकिलें बरामद की, जिसके दस्तावेजात मौजूद नहीं थे। पुलिस ने एक केस दर्ज करके इसे हिरासत में ले लिया है। नारसंगी पुलिस स्टेशन के हैदर शाह कोट सन सिटी कॉलोनी के अपार्टमेंट की पहली मंजिल से खातून के गले से 4 तोले की तलाई चैन छीन ली गई। तफसीलात के मुताबिक सारिक मुतासरा खातून के फ्लैट पहुंचा।
घंटी बजाई और जैसे ही खातून ने दरवाजा खोला वो अंदर दाखिल हुआ और तलाई चैन छीनकर फरार हो गया। खातून की चीखों पुकार पर पड़ोसी जमा हुए। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। सीसीटीवी की मदद से सारिक की तलाश जारी है। तेलंगाना जगतियाल के पिड्डापुर गुरुकुल स्कूल में सांप के काटने से एक तालिब इल्म जख्मी हुआ है। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह यशवंत नामी तालिब इल्म को सांप ने काट लिया। बताया गया है कि इससे पहले भी 6 तलबा को सांप ने काटा था। सांप के काटने के बढ़ते वाकयात पर गुरुकुल स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तलबा के सरपरस्तों ने तशवीश का इजहार किया है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। आउटर रिंग रोड टोल कॉन्ट्रैक्ट मामले की तहकीकात के लिए सिट कायम की जाएगी। हरीश राव के मुतालबे पर ऐवान असेंबली में रेवंत रेड्डी का ऐलान। फार्मूला ई रेस मामले में एसीबी ने केटीआर को बनाया मुल्जिम नंबर 1। असेंबली में मुबाहिस के लिए हुकूमत से किया मुतालबा। रियासती हुकूमत मरकजी हुकूमत के नक्शे कदम पर चल रही है। आदाद व शुमार के खेल में रियासत को होगा नुकसान। आरबीआई की ताज़ा रिपोर्ट का अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिया हवाला। और बेल बजाने के बाद खातून के गले से 4 तोले की तलाई चैन छीनकर सारिक फरार। नारसंगी पुलिस स्टेशन हदूद के हैदर शाह कोर्ट में सनसनीखेज वारदात। और नाज़रीन के साथ छोड़ी हुई खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।